quick summary of the chapter, The Rat Trap, written by Selma Lagerlof. Okay, so this chapter means basically it has focused on two aspects of human beings. The one is that how a person can be turned into a nice person if that person is not at all good. Means he is having all that negativity in him or her, so how he or she can be changed. And second thing, that how a greediness can make you so greedy that sometimes in some of the places in your life you can get stuck into a very ugly middle position that you cannot get out of from that, right? So here in this chapter there is a peddler, and so what that peddler does, this peddler is selling a rat trap, and that is not enough for him. So what he does, he also do a very little thievery activities that he can get more money and he can fill up his stomach. But still he has very high expectations with his life, because he also want a nice house, he want luxurious item, and according to him these all things are nothing but a rat trap, and these luxury and money, these all are nothing but a cheese and pork for a mouse. As the mouse, if the mouse is getting trapped into that cage, so what that mouse need? So that mouse need a cheese and pork. So in the same way he wants to make you understand. Now one day what happened, when he was walking towards his way, as he was having no house, so he always wanders from one place to another. So one day what happened, when he was wandering, so it was night and he wanted to take shelter somewhere. So he found a house, it was a cottage, and he went there and he knocked the door. And when he knocked the door, so he thought that he can get shelter there. So it was by luck that a man, a crofter, was living there, and that crofter was having no one with him. And that crofter was really very happy that someone has came to his house and he will have a nice time with that particular person. So he was really happy and he welcomed him with all nice gestures. And he even gave him food for night. He gave him a nice bed to sleep. He also played with him card games, and he also shared one of his very secret thing. And what was that? That he has earned 30 kroners by selling the milk of the cow, or by making the cream of that milk, and he has earned a lot within that week, and that was about 30 kroners. So those 30 kroners, where what is kept, it was a window pane के जस्ट साइड में एक थैला टंगा हुआ था. इट वॉज अ पाउच. उस पाउच को निकाल करके वो उसमें से वो 30 kroners उसको दिखाता है. ठीक है, तो ये दिखाने के बाद what happens कि now the peddler get little bit greedy for that, but he does not tell it, and not even he take it and run away during night. So they both slept, and early morning when they got up, so now here both of them went for their work. Now after some time peddler came back, and what he did, he just put his hand, anyhow he managed to break the window, and he just because during night he has already seen where that pouch has been hanged, so he just put his hand inside the window, and anyhow he managed to take out the pouch from that you can say the place where it was hanged, जिस जगह पे वो टंगा हुआ था, उसने उसको निकाला. उसमें से वो 30 kroners उसने निकाले. उस पाउच को वो वापस से वहां पे टांग देता है और वहां से वो भाग जाता है. अब उसके बाद उसको लगता है कि इन पैसों से वो काफी दिन तक बहुत ही ऐशो आराम के साथ जी सकता है. तो उसके पास दो रास्ते आते, एक तो या तो वो हाईवे की तरफ से जाए, और दूसरा ये तो फॉरेस्ट की तरफ से जाए. तो वो फॉरेस्ट वाले रास्ते को ऑप्ट करता है. क्यों? बिकॉज ही थॉट दैट इफ ही इज गोइंग फ्रॉम द अदर साइड, सो ही विल be caught, because crofter will definitely know that he has stolen and he will inform to the police. So he says that he is taking forest, but what happens that he lost himself in the forest, because from where he started he always came to the same place. कि वो उस जंगल में अपने आप को खो देता है और वो बार बार उसी जगह आ जाता है जहां से वो शुरू करता है. तो फिर बाद में उसे एक थंपिंग की आवाज आती है. ही लिसन्स टू द थंपिंग नॉइज, जैसे कि लोहे पे ठोकने की आवाज आती है. उसे वो आवाज आती है तो उसे लगता है कि पास में कोई आयरन मिल है, और वो वहां पे जाता है, क्योंकि उस समय काफी बारिश हो रही थी और वो काफी भीग चुका था और उसे बहुत ठंड लग रही थी. तो वो वहां जाता है और किसी तरह वहां पे एक फर्नेस के पास मैनेज करता है, यानी वहां के एम्प्लॉय से बात करके बेसिकली वो लोग तैयार नहीं थे किसी स्ट्रेंजर को वहां पे शेल्टर देने के लिए, पर फिर भी वो किसी तरह मिन्नतें करके वहां पे रुक जाता है.
अब रात में उस आयरन मिल का मालिक आता है, हु इज दैट आयरन मास्टर। ओके, सो आयरन मास्टर वहां पे आता है और आयरन मास्टर जब उसको देखता है तो आयरन मास्टर को धोखा होता है कि वो उसका दोस्त, जो कि वो भी रेजिमेंट में काम करते थे, तो ये उनका दोस्त निल्स अलोफ है जो उनके साथ रेजिमेंट में काम करता था। ठीक है, एंड देन ही सेज हिम दैट यू शुड कम विथ मी टू माई हाउस। वो कहता है तुम्हें मेरे साथ घर आना चाहिए, तुमने अपने आप को क्या कर लिया, तुम्हें रेजिमेंट नहीं छोड़ना चाहिए था। तो पहले तो निल्स अलोफ को लगा कि जब ये उससे दोस्त बोला था तो वो कुछ नहीं बोलता है, तो वो सोचता है कि उसे कुछ पैसे देगा तो उसे फायदा होगा, पर जब वो उससे जिद करने लगता है कि उसके घर जाए तो यहाँ पे पेडलर डर जाता है। ही गेट फ्राइटेंड दैट इफ ही इज गोइंग टू हिज हाउस देन एनीथिंग कैन हैपन, ही कैन बी कॉट, so he denies, he says no, I am perfectly fine here, and then Iron Master goes to his home, and after some time who comes? Elsa Willmanson. So who is Elsa Willmanson? Elsa Willmanson is Iron Master's daughter. वो आती है वहां पर and anyhow she convinces द पेडलर टू कम टू हर हाउस। फिर वो पेडलर को किस तरह कन्विंस करती है और उसको कहती है कि आप मेरे घर आइए क्योंकि मेरे फादर चाहते हैं आपको वहां आने। जबकि एल्जा को थोड़ा सा कुछ वियर्ड लगता है उसके पहनावे से, जिस तरह से वो डर रहा था, तो उसको ऐसा लगता है कि जरूर ये कहीं से भागा हुआ या इसने चोरी वोरी की है, इसलिए ये इस तरह से डर रहा है। फिर भी वो उसे अपने घर ले जाती है। जब वो उसको घर ले जाती है तो आयरन मास्टर बड़े खुश होते हैं और अपने बटलर को कहते हैं कि इसको अच्छे से नहला धुला दो और इसे मीन्स मेरे कपड़े दे दो, ये कपड़े पहन के आ जाएगा। तो वो उसे कपड़े देते हैं, उसको सही तरीके से नहलाया धुलाया जाता है, उसको साफ सुथरा किया जाता है। जब वो आयरन मास्टर के सामने आता है डाइनिंग रूम में तो वहां पे आयरन मास्टर उसको देख करके चौंक जाते हैं, क्योंकि आयरन मास्टर ये रियलाइज कर लेते हैं कि ये उनका दोस्त निल्स अलोफ नहीं है, ये कोई और है। तो वो उसी के ऊपर चार्ज करते हैं और उसको कहने लगते हैं कि तुम्हारी हिम्मत कैसी हुई कि तुम मेरे घर पे आओ। तो यहाँ पे पेडलर की भी बात सही थी। पेडलर कहता है मैं तुम्हारे घर नहीं आया, तुम मुझे जबरदस्ती अपने घर लेकर के आए हो। तो फिर वो उसको कहते हैं कि ठीक है, तो मैं ही तुमको लेकर के आया हूँ और मैं ही तुमको बोल रहा हूँ कि आप मेरे घर से निकल जाओ। तो पेडलर तैयार हो जाता है निकलने के लिए, पर यहाँ पे एल्जा बीच में आती है और एल्जा अपने फादर को कहती है कि क्रिसमस नजदीक आने वाली है तो हमें किसी के साथ ऐसा नहीं करना चाहिए, और इसे देख के भी लग रहा है कि काफी दिन से इसने कुछ खाया पिया नहीं है, इधर उधर भटक रहा है, तो अच्छा होगा कि हम इसे क्रिसमस तक अपने पास रख लें। किसी तरह आयरन मास्टर मान जाते हैं। फिर एक दिन जब एल्जा और आयरन मास्टर चर्च जाते हैं तो चर्च में वो वहां पे क्रॉफ्टर भी रहता है और उस क्रॉफ्टर की बात को सुन करके उन्हें पता लगता है कि पेडलर उनके घर से कुछ 30 क्रॉनर्स लेकर के भागा है। अब आयरन मास्टर एल्जा को कहते हैं कि अगर घर में कुछ भी चोरी हुआ तो उसकी जिम्मेदार तुम होगी, क्योंकि मैंने तुमको कहा था उसको नहीं वहां शेल्टर देने, बट स्टिल यू हैव बीन रिजिड टू कीप हिम। देन दे रश टुवर्ड्स देयर होम। जब वो घर जाते हैं तो आयरन मास्टर पूछते हैं अपने नौकरों से कि वो कहाँ है, तो वो लोग कहते हैं वो तो चला गया। एंड आफ्टर दैट व्हाट दे हैव सीन दैट ही हैज केप्ट अ लेटर फॉर एल्जा एंड ही हैज आल्सो केप्ट अ गिफ्ट फॉर एल्जा। इट वाज वेरी रफली पैक्ड और उस लेटर में लिखा हुआ रहता है एल्जा के लिए कि तुमने मुझे एक बुरे इंसान से अच्छा इंसान बनाया और मैं कैप्टन था नहीं, पर तुमने मुझे कैप्टन के जैसा फील कराया, पर मुझे ये चीज बुरी लग रही है कि मैंने तुमको चीट किया, तो उसके लिए मैं तुमको सॉरी बोलता हूँ और तुम्हें ये गिफ्ट देता हूँ क्योंकि मेरे पास बस यही है, और तुमको थैंक यू बोलता हूँ कि तुमने मुझे चेंज किया। और साथ ही साथ वो 30 क्रॉनर्स भी उसके साथ रख देता है और कहता है कि ये उस क्रॉफ्टर को दे देना, और लास्ट में लेटर में थैंक यू बोल करके एंड दैट लेटर इज एंडेड। सो दिस वाज द समरी